अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बाबर सुहेल, अब्दुल करीम भट्ट एंड हसनैन। Assalamualaikum teacher. वालेकुम अस्सलाम। How are you all? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। How are you all? मोहम्मद अब्दुल्ला, सुहेब, ईमान, हाजरा, शिफा, वानिया। Fine, thank you. Okay, students. Today I'll take your English language class, and this is our first English language class. Okay, and this is your English language book. You can see it. English language book, Grammar Tree, Book 5. I hope you all have purchased this book. वानिया बेटा प्लीज कैमरा ऑन करें। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद हुसैन, हाजरा नकवी, प्लीज कैमरा ऑन करें। Okay, students, today we are going to start chapter number 1 of Grammar Tree, Book 5. It's on page number 1 of your book. ठीक है? Open your book. You can see the yes, students, you can see the name chapter name on the board. Okay, students, chapter number 1 is adjectives, interrogative, and emphasizing. In this chapter, we will learn about the two kinds of adjective, that is interrogative and emphasizing. We have already learned adjective and its three main kinds in the previous in class 4. Yes, do you remember? Yes, who will tell me? मिस Yes, आपकी student. वीडियो नहीं आ रही। Yes, अब आ रही है? नो नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। नो बिल्कुल ही नहीं आ रही। ब्लैक हो रही है इसकी। यस, अब आ रही है। बेटा अपना कैमरा ऑन करें, ये मुझसे किसने कहा है? किस किस को नहीं नजर आ रहा है वीडियो मेरी? किस किस को नहीं नजर आ रही? मिस मुझे नहीं नजर आ रही। किसी को भी नहीं आ रही है? मिस मुझे नजर आ रही है। मिस आ रही है, आ रही है। बेटा आप अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। ओके यस ओके स्टूडेंट्स, yes, who will tell me? We have read about the three kinds of adjectives in class 4. Who will tell me the name of those kinds? Hurry up. comparative, No, comparative, क्वालिटेटिव, yes, कॉन्ट्रिलेटिव yes. एंड डेमोंस्ट्रेटिव। We have learned three main kinds of adjective in class 4, that are qualitative, quantitative, and demonstrative. Okay, students. But first we will revise adjective and its three kinds which we have learned in class 4. Then we will read about the interrogative and emphasizing adjective. Understand? And we will do the exercise of this chapter. Okay, we will revise previous kinds by the help of these pictures. Okay, students. What is adjective? अच्छा स्टूडेंट्स, प्लीज आप अपने स्पीकर अपने माइक्स खुद बंद कर लीजिए। जब आपको आंसर करना हो खुद अपने माइक ऑन करके आंसर करेंगे। अंडरस्टैंड? ताकि डिस्टरबेंस ना हो और आप लोगों को क्लियर आवाज आ सके। फर्स्ट, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज द नाउन. ओके,
Students, what is adjective? You have already learned adjective in previous classes. Those words that tells us something more about the noun called adjective. यानी कि ऐसे अल्फाज जो के नाउन के बारे में मजीद कुछ बताने के लिए या उसको क्वालिफाइज करने के लिए या उसको मजीद डिस्क्राइब करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव. ओके, you can see the examples. The fat cat sat on the mat. Students, in this example, tell me what is noun. I am asking you about the noun. What is noun? Yes, who will tell me? Cat. Very good. And what is adjective? Fat. Fat, because it is the quality of a cat. Fat qualifies the cat. Okay. Fat. Second example is he has written many books. Students, in this example, many is adjective and it qualifies the noun books. Okay. Okay, now come to the kinds of adjectives. First one is qualitative adjective. A आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। बेटा आप सब अपने स्पीकर्स वो अपने माइक बंद कर दें या मैं खुद आपके माइक बंद कर देती हूँ, तो फिर आपको मेरी आवाज सही आएगी. अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है? अब आप लोगों ने करना ये है कि हैंड रेस कर दीजिए या बताइए हाथ उठाकर आवाज सही आ रही है? यस. ओके गुड. अब्दुल करीम, ओके गुड, थैंक यू बेटा. सुहेब. ओके स्टूडेंट्स, first one is qualitative adjective. A qualitative adjective is used to describe the features or qualities of a noun. स्टूडेंट्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो है वो किस लिए यूज किए जाते हैं? नाउन की खुसूसियात को, उसकी साख्त, उसके फीचर्स बताने के लिए. ठीक है. एग्जाम्पल्स: ग्रीन ग्रास, अ रेनी डे, अ लॉन्ग स्टोरी. Green grass. Students, here green is qualitative adjective because it qualifies the noun grass. A rainy day. Students, rainy day, hot day, cloudy day. These are, cold day. These are the qualities of a day. So rainy is qualitative adjective. A long story. Students, story long भी हो सकती है, short भी हो सकती है, funny, horror. So these are the qualities of the story. So here long is adjective and it qualifies the noun story. Okay. Second is quantitative adjective. An adjective which tells us how many or how much of something is meant is called quantitative adjective. Students, an adjective which describe the exact or approximate amount of a noun is known as quantitative adjective. यानी quantitative adjective हमें किसी भी चीज की तादाद या उसके वजन के बारे में बताता है. Actual और approximate कुछ भी हो सकती है वो. For example, some students raised their hands. Students, here some is quantitative adjective and it qualifies the noun students. Okay. You have already learned these types of adjectives in previous class. Okay. There were 11 players in each team. Students, here 11 is quantitative adjective and it qualifies the noun player. ठीक है. यहाँ पर players की तादाद कितनी है? 11. इसलिए जो है इसको quantitative adjective किया गया क्योंकि ये बिल्कुल exact amount, exact तादाद बता रहा है. ठीक है. Now third one is demonstrative adjective. ये भी आप class 4 में पढ़ चुके हैं. The adjective which are used to point out or draw your attention to certain persons or things are called demonstrative adjectives. Students, ऐसे adjective जो किसी person या thing को point out करने के लिए use किए जाते हैं या किसी की तवज्जो किसी मखसूस शख्स, चीज, जगह या एनिमल की तरफ जो है वो दिलाने के लिए जो adjectives use किए जाते हैं, these are called demonstrative adjectives. और ये adjectives कौन से होते हैं? This, that, these, those, such. Okay? Because ये words जो हैं वो किस लिए use किए जाते हैं? To point out anything. Example: this book is called the grammar tree. Students, यहाँ पर
जिस बुक को पॉइंट आउट किया जा रहा है वो क्या है? ग्रामर ट्री. सो हियर दिस इज demonstrative adjective. I have never seen such a beautiful sight before. Students, in this example, such is used in a comparative way. यानी कि इससे पहले इतना खूबसूरत मंजर नहीं देखा, तो ये कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. So these are the kinds of adjectives which you have learned in class 4. Now we will read about the interrogative and emphasizing adjective. Okay, you can see the emphasizing adjective on your screen. Sorry जी, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं. Students, open page number 1. You can see the definition of interrogative and emphasizing adjective on page number 1, or you can see it on your screen also. Okay, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और पेज नंबर 1 पर भी. Interrogative adjectives. An interrogative adjective is used with a noun that it qualifies to ask a question. Students, interrogative adjectives are basically a WH words, question words, जो आप किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नाउन के साथ यूज होते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, दीज आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन. यानी कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि नाउन के साथ यूज हो और वो उसके साथ साथ किस तरीके से उसकी नाउन को क्वालिफाइज कर रहे हो बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, तो वो क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स. और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव सारे WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, which, what, whose, who, where, why, what. Okay, you can see the examples on your screen as well as in your book. Which part of the world do you come from? Students, in this example, which is an interrogative adjective because it qualifies the noun part and it also asks a question. ठीक है. यहाँ पर which जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? वो पार्ट को क्वालिफाई कर रहा है, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. और साथ साथ वो क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज हो रहा है, लिहाजा इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का नाम दिया गया है. ठीक है. Second one is, what gifts did you get on your birthday? What is also an interrogative adjective and it qualifies the noun gifts and it also asks a question. यानी कि ऐसे WH words, ऐसे interrogative या question words जो कि noun को qualifies करें और साथ साथ वो question पूछने के लिए भी use हो रहे हैं, तो वो फिर interrogative adjective कहलाते हैं. Whose books are those on the table? Students, in this example, whose is an interrogative adjective and it qualifies the noun books and also it is used to ask a question. Okay. Students, if you have any question about the interrogative adjective, please unmute your mic and ask me. Miss, Yes. ये Miss, how भी होगा इसमें interrogative adjectives में? कौन पूछ रहे हैं ये? Who is Miss speaking? Yes, बेटा. ये How अगर भी वो आएगा interrogative? बेटा अगर वो जो है आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर वो नाउन को क्वालिफाई कर रहा हो, तो जरूर होगा. ठीक है. ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वो नाउन को भी क्वालिफाई कर रहा है और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज हो रहा है, तो जरूर होगा. अंडरस्टैंड? Yes. Okay students, now we will read about the emphasizing adjective. Students, today is Friday और हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है, इसलिए मैं जल्दी जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ. अगर आपको बाद में भी कोई क्वेश्चन जहन में आता है तो यू कैन आस्क मी लेटर. बाद में जो हमारी क्लास होगी उसमें भी आप पूछ सकते हैं. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, emphasizing adjectives. An emphasizing adjective is used to emphasize or heighten the effect of what we say. Students,
एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो है वो बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? दे आर यूज टू हाईलाइट द स्पीकर वर्ड्स, यानी कि जो कहा जा रहा है, जो अल्फाज बोले जा रहे हैं, उनका असर मजीद बढ़ाने के लिए जो हम वर्ड्स यूज करते हैं वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, आप एक सिंपल बात बोल रहे हैं, इट्स ओके, बट व्हेन यू यूज एनी वर्ड टू एम्फेसाइज योर वर्ड्स, यानी कि कोई भी एक ऐसा लफ्ज आप यूज करते हैं जो कि आपकी बात को मजीद पुरजोर बनाता है, या आप अपनी बात पर जोर देने के लिए या उसको मजीद पुरअसर बनाने के लिए यूज करते हैं उस वर्ड को, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ओके, example, what the man said was absolute rubbish. Students, in this example, absolute is emphasizing adjective. What the man said was absolute rubbish, यानी जो भी आदमी ने कहा वो बिल्कुल बकवास था। हम यूं भी कह सकते थे was what the man said was rubbish, बिल्कुल इसने तो बकवास बोला है, बुरा बोला है। ठीक है, but we use here absolute. Why? It has been used to emphasize the वर्थलेसनेस ऑफ व्हाट द मैन सेड, यानी कि जो उस आदमी ने कहा वो बिल्कुल ही बेकार था, उसको हमने मजीद इस बात को एम्फेसाइज करने के लिए एब्सोल्यूट यूज किया है। बेसिकली हियर एब्सोल्यूट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव एंड इट क्वालिफाइज द नाउन रबिश। ओके, यहाँ पर एब्सोल्यूट जो है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है और ये नाउन रबिश को क्वालिफाई करता है। और ये किस लिए यूज किया गया है यहाँ पर रबिश के साथ? कि जो हम अपनी राय दे रहे हैं कि जो भी उस आदमी ने कहा वो बिल्कुल बेकार था, उसको हम मजीद अपनी बात पर जोर देने के लिए हमने ये वर्ड यूज किया। ओके, इट व्हाट द मैन सेड वाज नॉट ओनली रबिश। नो बेटा, जो करना है वो मैं बता दूंगी। व्हाट द मैन सेड was not only rubbish but absolute rubbish. Okay, Rohma came late and had to stand at the very end of the line. Students, in this example, speaker tells us that Rohma came late and had to stand not only at the end of the line but at the very end of it. यानी कि वो लेट आई, वो सिर्फ लाइन के एंड में नहीं खड़ी हुई, वो बिल्कुल ही आखिर में जाकर खड़ी हुई। यानी यहाँ पर हम ये भी कह सकते थे शी स्टैंड एट द एंड ऑफ द लाइन, बट यहाँ पर हमें अपनी बात को पुरअसर पुरजोर बनाना था, अपने अल्फाज को जो है वो हाईलाइट करना था। सो वी यूज हियर वेरी। ओके, अंडरस्टैंड? जैक बिल्ड दिस हाउस विद हिज ओन हैंड्स। स्टूडेंट्स, हियर इस एग्जाम्पल में आप देखिए, here speaker wants to clear that Jack had worked hard to build his house, but यहाँ पर उसने अपने अल्फाज को मजीद पुरजोर यस। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज ही नहीं आ रही मिस। बिल्कुल नहीं आ रही क्या? अब आ रही है? हेलो, यस आ गई अब आई। ओके, वो शायद इंटरनेट इशू था इसलिए नहीं आ रही थी। ओके स्टूडेंट्स, यस। आपने द बुक वाज अ टोटल फेलियर वाला आपने सवाल नहीं पढ़ा। ओके, वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, मैं बुक से देख के बताती हूँ। द बुक वाज अ टोटल फेलियर फॉर ओनली अ फ्यू पीपल बॉट इट। स्टूडेंट्स, जो बुक थी वो बिल्कुल ही, जो भी बुक एक मार्केट में आई वो बिल्कुल ही जो है नाकाम हो गई और सिर्फ कुछ लोगों ने उसको खरीदा। अब यहाँ पर उसकी नाकामी को सिर्फ द बुक वॉज अ फेलियर भी कहा जा सकता था, लेकिन हमने उसकी नाकामी को बिल्कुल उसकी नाकामी पर जोर देने के लिए क्या लफ्ज यूज किया? द बुक वॉज अ टोटल फेलियर। ठीक है, वो बिल्कुल ही नाकाम हो गई। ठीक है, हियर फेलियर इज यूज्ड फॉर टू डिस्क्राइब हाउ ग्रेट अ फेलियर द बुक वॉज। ठीक है, इट वॉज नॉट जस्ट अ फेलियर, इट वॉज अ टोटल फेलियर। द वर्ड टोटल क्वालिफाइज द नाउन फेलियर। ठीक है, Jack built this house with his own hands. Students, here speaker wants to make it clear that Jack worked very hard to make his
हाउस, उसने अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत की, उसने अपनी बात को या उसकी मेहनत को हाईलाइट करने के लिए या अपने वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए क्या कहा, विद हिज ओन हैंड्स, यानी उसने अपना घर अपने हाथों से बनाया, यानी इतनी मेहनत की, तो इसलिए ये सिर्फ ओन हैंड्स, यहाँ पर ओन किस लिए यूज किया गया है, हाईलाइट करने के लिए, अपने अल्फाज को हाईलाइट करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट देख सकते हैं स्क्रीन पर, समटाइम्स एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड नॉट टू हाइटन बट टू लोअर, जी, but to lower the effect of what the noun it qualifies would make us expect. Students, emphasizing adjective सिर्फ जो है वो हमारे अल्फाज को हाईलाइट करने के लिए यूज नहीं होते, बल्कि समटाइम्स जो हमारी बात होती है उसका असर कम करने के लिए भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर द स्टॉर्म देयर वाज अ स्लाइट फॉल इन द टेम्परेचर, यानी कि जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टॉर्म के बाद टेम्परेचर में कमी वाकया होगी, तो लेकिन वो बहुत ही हल्का सा, मामूली सा, स्लाइट मीन्स मामूली सा फर्क पड़ा टेम्परेचर में, यानी कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे अगर कम जो है आपको रिजल्ट मिले, तो उसके लिए भी हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज शी गेव अ फीबल स्माइल, जब उसने एक इतनी अच्छी खबर सुनी लेकिन उसने बहुत मामूली, बहुत कमजोर सी मुस्कुराहट दी, यानी कि अगर आपको कोई गुड न्यूज मिलती है तो जितना आपसे एक अच्छे गुड रिएक्शन की उम्मीद थी वो उतना अच्छा रिएक्शन नहीं मिला। ओके स्टूडेंट्स, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। यस, एक मिनट में, अब बताइए, अब सही आ रही है? रेज योर हैंड अब्दुल करीम, अगर सही आ रही है तो। दुआ का तो आ रही है, यस मिस सही आ रही है। और आप लोग भी अपने माइक बंद कर लीजिए, अपने माइक बंद कर लीजिए, सबके माइक ऑन होते हैं ना तो फिर मेरी आवाज कम आती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज एंड इट्स ऑन पेज नंबर 2। आप देख सकते हैं पेज नंबर 2 पर एक्सरसाइज है। वी विल डू इट in your book and we will do 5 sentences, 1 till 5 and 6 to 10 you have to do by your own self. Okay, प्लीज आप अपना ब्लैक पेन, सॉरी ब्लू पेन ले लीजिए। You can see the sentence number 1 on the board. Do not listen to what Rehan says for he is a complete fool, said Raza. Students, first mention of what kind each of the underlined adjective is. Students, here 10 sentences are given and each sentence has one underlined adjective and you have to tell whether it is emphasizing or interrogative. ठीक है, यहाँ पर 10 sentences given है और हर sentence में एक underlined adjective है. You have to tell me whether it is emphasizing or interrogative. Okay, understand? Number 1. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जिसको भी आंसर करना हो वो अपना माइक अनम्यूट करें और आंसर करें। ओके, डू नॉट लिसन टू व्हाट रेहान सेज फॉर ही इज अ कंप्लीट फूल। यस स्टूडेंट्स, इन दिस सेंटेंस emphasizing, very good. In this sentence, complete is a emphasizing adjective and it qualifies the noun fool. ठीक है, ये किस लिए यहाँ पर यूज हुआ है? It has been used to emphasize the foolishness of Rehan. ठीक है, so आप ब्लैक पेन से इसके ऊपर लिखेंगे, सॉरी ब्लू पेन से, emphasizing. ठीक है, राइट emphasizing above the complete. Yes बेटा, आपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है मतलब पॉइंट करके इसको लिखना है? नहीं बेटा, आपके पास तो बुक में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक। कॉपी में कोई काम नहीं करना फिलहाल। ओके ओके ओके। नंबर 2, किरण इज अ, अच्छा अब सुहेब के अलावा कोई और आंसर करे। किरण इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस किसे कहते हैं? तशद्दुद वगैरह। ठीक है, किरण जो है वो
किस चीज की सपोर्टर है? नॉन वायलेंस के, यानी कि गैर तशद्दुद मज़ामत की। Miss, emphasizing. Yes, emphasizing. And it qualifies the noun Supporter. supporter of non violence. ठीक है, यानी कि उसकी सपोर्टनेस को क्वालिफाइज कर रहा है। नंबर 3, what crime has the prisoner committed? asked the judge. Interrogative. 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 Very good. Students, have you understand कि आपने किस तरीके से लिखना है ऊपर? Can you see on the board? जैसे मैं लिख रही हूँ। Yes. सही से देख नहीं रहा। तो बेटा आप emphasizing की और इंट्रोगेटिव की स्पेलिंग तो ऑलरेडी आपकी बुक में लिखी हुई है ना, और साथ साथ मैं बोल भी रही हूँ, आप लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट इज एम्फेसाइजिंग, ग्रेट इज एम्फेसाइजिंग, एंड थर्ड व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ओके, इट क्वालिफाइज द नाउन क्राइम एंड इट आल्सो आस्क्स अ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर ये जो है क्राइम को क्वालिफाइज कर रहा है और इसके अलावा क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज हो रहा है। ओके, Dua, do you want to ask anything? Dua, बेटा आप कुछ पूछना चाहती हैं? Okay, number 4. Aurangzeb had his own father Shahjahan imprisoned in the Agra fort. Yes, students. Emphasizing. 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 Repeat with me. Emphasizing. Emphasizing. ठीक है, ठीक है, ब्लू पेन से आप ओन के ऊपर emphasizing लिखिए। The play was an utter failure and the actors were booed by the audience. Utter means complete, यानी कि प्ले जो है वो कंप्लीट फेलियर था और ऑडियंस ने जो है वो उसको डिसअप्रूव कर दिया। बूड मींस डिसअप्रूव कर देना। यस, गुड, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है? No. Okay, students, do sentence number 6 to 10 by your own self and you have to complete this exercise in your book. ठीक है, ये आपने बुक में करनी है। 6 to 10 sentences खुद करने हैं और please write today's date. Have you written the date? Yes. Yes. Write today's date on page number 2. Yes. जी? Heading के ऊपर लिखिए date. Yes. Okay, students, do complete this exercise. You have to do sentence number 6 to 10 by your own self. Okay? Understand? Yes. And our class time is about to end. Inshallah, we will start new chapter in the next class. Okay? Yes. Yes, beta, do you want to ask any question? No. No. No, miss. No, miss. No, miss. Okay. Okay, students, take care of yourself and your family. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Miss.